اگر تم 15 سال کی تھی تو شادی ہی نہ کرتی۔ میں تو سہاگ رات مناؤں گا، مجھ سے اب اور صبر نہیں ہوتا۔ میں تمہیں سکھاؤں گا کہ سہاگ رات کیسے مناتے ہیں۔ وہ روتی رہی، لیکن اگر 15 سال کی تھی تو شادی ہی نہ کرتی۔ میں تو سہاگ رات مناؤں گا، میں تمہیں نہیں بخشوں گا، میری لاڈلی بھانجی۔ بلال کمرے میں داخل ہوا۔ چھوٹی سی دلہن کو دیکھتے ہی بلال خباثت سے مسکرایا اور جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس کی گردن پر شدت سے بوسے نچھاور کرنے لگا۔ بلال بھائی، یہ گندی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی کہنے پر وہ بھڑک اٹھا۔ اب میں بتاتا ہوں میاں اور بھائی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ بلال نے اس کی قمیض اتارتے ہوئے اس کی دھڑکنوں پر۔ رات کے تقریباً 2 بجے بلال گھر میں داخل ہوا۔ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا تھا، اور ابھی اس کے دوستوں نے اس کی جان چھوڑی تھی تو وہ گھر آ گیا۔ اس وقت اس کا ارادہ اپنے کمرے میں جانے کا تھا، جہاں اس کی بیوی سجی سوری شاید ابھی تک اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بلال اچھی طرح جانتا تھا وہ کتنی فرمانبردار ہے، اور بلال اسے بول کر گیا تھا کہ میرے آنے تک دلہن کے روپ میں ہی بیٹھنا، اور اب بلال مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ جب اس کے قدم تھمے، فرزانہ بیگم نے اسے پکارا۔ بلال بیٹا، میری بات سنو۔ اس نے مڑ کر فرزانہ بیگم کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ جی اماں صاحب بولیں۔ اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ دیکھو بلال، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، فرزانہ بیگم نے بہت نرمی سے کہا۔ جی اماں صاحب بولیں۔ ان کے چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ انہوں نے کوئی بہت ضروری بات کرنی ہو، جبکہ وہ اس وقت کمرے میں جانا چاہتا تھا۔ اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھنے کے لیے وہ بہت بے تاب تھا۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، وہ جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی اماں سائی نے روک لیا۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ بلال بیٹا، میں جانتی ہوں تم ایک مرد ہو، اور مرد کو اپنے جذبات پر قابو پانا بہت مشکل ہوتا ہے، خاص کر جب اس کے پاس ایک حلال اور پاکیزہ رشتہ موجود ہو، اس کی بیوی اس کے کمرے میں موجود ہو۔ وہ خود پر کبھی قابو نہیں پا سکتا۔ لیکن میں تمہیں بس اتنا کہوں گی کہ ایمان ابھی بہت چھوٹی ہے۔ تمہیں معلوم ہے وہ محض 15 سال کی ہے، تو تم اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق قائم نہیں کرو گے، بلکہ تم اس سے دور رہو گے۔ میں تمہاری جنونی کیفیت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ دیکھو ایمان مجھے بہت پیاری ہے، میری بھانجی ہے، اور تمہاری بیوی بننے کے لیے اسی لیے تیار ہوئی تھی کیونکہ میں نے اس کی اماں کو یقین دلایا تھا کہ بلال اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے گا، محبت کے ساتھ رکھے گا۔ تو تمہیں ایسا سلوک ایمان کے ساتھ نہیں کرنا جیسا تم اپنی پہلے والی بیوی کے ساتھ کرتے تھے۔ فرزانہ بیگم بہت محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ بلال کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب ہے اماں صاحب؟ اگر اتنی ہی وہ چھوٹی لڑکی تھی تو آپ نے میری اس کے ساتھ شادی کیوں کروائی؟ آپ نے مجھے کتنی مشکل سے اس شادی کے لیے منایا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ شادی کی بات میری مرضی ہوگی، جو میں کروں گا مجھے روک نہیں سکے گی، اور آپ میاں بیوی کے درمیان کبھی نہیں آ سکتی۔ آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے اپنی بیوی سے دور رہنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے۔ ہم میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ فرزانہ بیگم حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے غصہ آیا ہوگا، لیکن اس قدر غصہ آیا ہوگا اس کا فرزانہ بیگم کو بالکل اندازہ نہیں تھا۔ دیکھو بیٹا، اتنا غصہ مت کرو۔ وہ بلال کو ابھی پکار ہی رہی تھی کہ بلال وہاں سے غصے میں اٹھ کر کمرے کی طرف آ گیا۔ اس کے چہرے پر دنیا جہاں کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ ایمان جو کہ دلہن کے روپ میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، اب تو بیٹھے بیٹھے اس کی کمر بھی اکڑ چکی تھی۔ بلال کو دیکھتے ہی اس نے گہری سانس لی اور بے ساختہ ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بلال جو تھوڑی دیر پہلے تک اس کے ساتھ بہت محبت سے بات کر گیا تھا، اب اس کے چہرے پر دنیا جہاں کی سنجیدگی اور غصہ چھایا ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ میں شادی کی پہلی رات ہی اپنا حق تم سے وصول نہ کروں، بلکہ تمہاری کم عمری کا خیال کر کے پیٹھ موڑ کر سو جاؤں؟ وہ غصے میں بول رہا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ مجھے آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی۔ ایمان کے دل میں عجیب طرح کی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سامنے بیٹھا ہوا شخص بہت حسین تھا اور نہ جانے کیوں اسے بہت خوبصورت بھی لگ رہا تھا۔ بار دل اس کی طرف مائل ہو رہا تھا، لیکن یوں بلال کا غصے میں بات کرنا ایمان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بلال کیا ہوا ہے؟ آپ کو غصہ کیوں آیا ہوا ہے؟
وہ मासूम बच्चों की तरह सवाल कर रही थी। देखो लड़की, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है शादी की रात क्या होता है। मैं कभी भी अपने हक से पीछे नहीं हट सकता। मैं अपना हक तुमसे वसूल करना चाहता हूँ। ईमान जो सिर्फ इतना जानती थी कि शादी होती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, उसे तो कुछ भी नहीं मालूम था। अब बलाल की बातें उसे परेशान कर रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। बलाल, मुझे आपकी बातों की समझ नहीं आ रही, वो बार बार बच्चों की तरह बोली। इतनी छोटी बच्ची नहीं हो कि तुम्हें मेरी बात समझ ना आए। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, मैं अपने हक से पीछे नहीं हटूंगा। इस वजह से तुम्हें मुझे मेरा हक देना होगा। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता उसके गाल पर हाथ फेर रहा था। अब की बार ईमान जी जान से कपकपाई थी, उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। वो शख्स का लम्स महसूस करते ही उससे दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज्वेलरी उतारने लग गया। अभी भी वो घबरा रही थी, पीछे होने की कोशिश कर रही थी। क्या हो गया है? कहाँ पीछे भाग कर जाना चाहती हो? अब तो तुम मेरी बीवी बन चुकी हो, ऐसे कैसे मैं खुद से तुम्हें दूर जाने दूंगा। उसकी ज्वेलरी उतारने के बाद उसके दुपट्टे की पिन उतारने लगा। उसका दुपट्टा साइड पर रख चुका था। ये क्या कर रहे हैं? वो घबराते हुए उसके हाथों को रोकने की कोशिश करने लगी, तो बलाल ने गुस्से में उसके हाथों को झटक दिया। खबरदार, जो तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर बलाल ने उसके बालों को भी खोल दिया। वो बिल्कुल बिखरी हुई हालत में अब उसके सामने बैठी हुई थी। ज्वेलरी भी नहीं थी। एक लम्हे के लिए बलाल उस पर झुका तो उससे अपना सांस बंद होता हुआ महसूस होने लगा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। उसे तो इन बातों के बारे में मालूम भी नहीं था जो कुछ बलाल कर रहा था। बलाल उससे दूर हुआ तो वह बिल्कुल हाइपर हो गई, गहरे गहरे सांस ले रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे अभी उसके होंठों से खून बहने लग जाएगा। उसकी लिपस्टिक फैल चुकी थी। बलाल के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। कम उम्र लड़की के चेहरे पर तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरती आती है। शोहर की गुर्बत और ये तुम्हारे चेहरे पर बिखरे हुए हया के राग मुझे पागल कर रहे हैं। ये कहकर उसकी कमर पर हाथ रखता हुआ उसे मज़ीद अपने करीब करने लगा। बलाल, ये आप क्या कर रहे हैं? मत करें ऐसा प्लीज़, वो रोते हुए बोली। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू उसके गालों पर आ चुके थे। ये आंसू अभी से क्यों ज़ाया करने लग गई हो? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं, तुम तो अभी से रोने लग गई। वो आगे बढ़ रहा था। अगले ही लम्हे वो उस पर झुका और उसके आंसुओं को पीने लगा। जैसे जैसे वो लम्स महसूस कर रही थी, उसका दिल सूखे पत्ते की मानित लरसने लगा था। मत करें ऐसा प्लीज़, वो रोते हुए बोली। क्या हो गया है? इतना ज़्यादा डर क्यों रही हो? अभी तो आगाज़ है, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, तुम रोने लग गई। वो दोबारा उस पर झुकने लगा जब ईमान का हाथ उठ गया और ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। ये देखकर तो उसका दिमाग घूम गया। ये थप्पड़ महज उसके मुंह पर नहीं बल्कि उसकी अना को लगा था, जो सामने बैठी एक मामूली सी लड़की ने उसे लगाया था। तुम अभी जानती नहीं हो मैं कौन हूँ? मोहब्बत से तुम्हारे साथ पेश आ रहा था, तुम तो आगे से कुछ ज़्यादा ही चौड़ी हो गई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? वो गुस्से में चलाता हुआ बोला तो ईमान घबरा गई। सॉरी सॉरी, मैं बिल्कुल भी आपको नहीं मारना चाहती थी, वो रोते हुए बोली। लेकिन वो ईमान को बालों से पकड़ता हुआ पीछे बेड पर फेंक चुका था। अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। बलाल भाई, प्लीज़ ऐसा मत करें, वो घबराते हुए बोली। जल्दबाजी में उसे भाई भूल गई। हमेशा की तरह उसे भाई ही कहती थी। अपनी अम्मा के लाख मना करने के बावजूद, उनके समझाने के बावजूद, एक दफ़ा फिर से उसके मुंह से भाई निकल चुका था और यही लफ्ज़ सुनते ही बलाल का दिमाग घूम गया। भाई, पागल हो गई हो क्या? क्यों अपने निकाह को ख़राब करना चाहती हो? ये मुझे भाई बोलकर, खबरदार जो दोबारा से तुम्हारी ज़ुबान से भाई निकला। बल्कि मैं तुम्हें समझा देता हूँ, मैं तो तुम्हारा शौहर हूँ। भाई और शौहर में क्या फ़र्क होता है? मैं ज़रा तुम्हें आज की रात समझाऊंगा। ये कहकर वो उस पर झुकता चला गया। रोते हुए वो उसके सीने पर मुक्के मार रही थी, उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। उस वक़्त वो मुकम्मल तौर पर अज़ियत तकलीफ़ से गुज़र रही थी। मत करे ऐसा, वो रोते सिसकते हुए बोली। लेकिन वो रात भर अपनी शिद्दत निछावर करता रहा। जैसे ही वो सोया तो वह घबराते हुए उठ गई, आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। अपने आप को देखने लगी। न जाने कितनी देर तक आईने में अपने आप को देखती रही। बेसन की रोटी खोले अपने चेहरे पर छींटे मारने लगी। काजल फैला हुआ था, आंखों के गिर स्याह हल्के पड़ चुके थे, लिपस्टिक भी फैली हुई थी। शावर लेने के बाद फ्रेश होकर वह बाहर आई तो वह बहुत सुकून की नींद सो रहा था। लेकिन वह डर रही थी, ये सब कुछ क्या हुआ था उसके साथ। वह फौरन कमरे से बाहर चली गई। अगर इतनी रात बलाल उसे कमरे से बाहर जाता हुआ देख लेता तो ज़रूर उसके साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आता। वो रोती सिसकती रही। अब उसका इरादा फरजाना बेगम के कमरे में जाने का था। कमरे से निकलने के बाद वह फरजाना बेगम के कमरे की तरफ गई।
दरवाज़े पर दस्तक दी तो काफ़ी देर तक फरज़ाना बेगम ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उसने नाप घुमाया और फिर कमरे में दाखिल हो गई। इतने में सोई हुई फरज़ाना बेगम भी उठ चुकी थी। इतनी रात को अपने कमरे में देखकर वो थोड़ी परेशान हुई। बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मोहब्बत से और नरमी से पूछने लगी। वो रोती हुई उनके सीने से लग गई। खाला जान, मुझे उनके कमरे में नहीं जाना, वो बहुत बुरे हैं। खाला जान, आपने बोला था वो मुझे मोहब्बत से रखेंगे, प्यार से मेरे साथ पेश आएंगे। खाला जान, उन्होंने मेरे साथ रोते रोते उसे बताने लगी, लेकिन फरजाना बेगम ने उसे खामोश करवा दिया और उसे अपने पास बिठा लिया। बेटा देखो, ये तो शौहर का हक होता है ना, जो बीवी को अदा करना होता है। मोहब्बत से हर चीज़ के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं उनके साथ रहना खाला जान, प्लीज़ मुझे वापस अम्मा के पास छोड़ आई, मैं उनके पास चली जाऊंगी, मुझे यहाँ की ज़िंदगी नहीं चाहिए। आपने बोला था यहाँ मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, गुर्बत भी नहीं होगी, अयाशी होगी, सुकून होगा, मुझे पढ़ने भी देंगे, लेकिन इतनी अज़ियत तकलीफ़ में नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो हर चीज़ को ठोकर मारते हुए सुकून की तलाश में थी। उसे सुकून चाहिए था जो उसे नहीं मिल रहा था। बलाल की दी हुई अज़ियत ने उसे बहुत तोड़ कर रख दिया था। मुझे आपके कमरे में ही सोना है, मुझे उनके कमरे में नहीं जाना, वो रोते हुए बोली। फरजाना बेगम बलाल की तबीयत से अच्छी तरह वाक़फ़ थी। अगर उसे पता चल जाता कि उसकी बीवी उसके पास सोने की बजाय उसकी माँ के घर में सो रही है तो उसने हर चीज़ को तहस-नहस कर देना था। फरज़ाना बेगम मोहब्बत से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा ठीक है, मैं उसे समझाऊँगी, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा तुम्हारे साथ। अभी प्लीज़ तुम अपने कमरे में जाओ। वो उसे कमरे से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी ज़िद्दी थी। नहीं खाला जान, मुझे नहीं जाना उनके कमरे में। वो फिर से मेरे साथ कहकर वो बहुत शिद्दत से रोने लगी। बेटा, तुम्हें एक बात की समझ क्यों नहीं आती? अभी भी बच्चों की तरह ज़िद कर रही हो। उसे बलाल के कमरे में नहीं जाना था। अब की बार फरजाना बेगम ने गुस्से में उसका बाजू दबोचा, कहने लगी, तुम्हें एक बात की समझ क्यों नहीं आती? मोहब्बत की ज़ुबान तो तुम समझती नहीं हो। बलाल तुम्हारा शोहर है। ईमान। फरजाना बेगम से उसके इस रवैये की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कितने गुस्से में फरजाना बेगम ने उसके साथ बात की थी। वो जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। उस वक़्त उसके कदम वापस बलाल के कमरे की तरफ थे। जब वो कमरे में आई तो बलाल सुकून की नींद सो रहा था, लेकिन वो बेड पर किसी कीमत पर भी सोना नहीं चाहती थी। इसी वजह से जाकर सोफे पर सोने के लिए लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दिल बहुत बुरी तरह धड़क रहा था। बार बार बलाल की हरकतें उसकी आंखों के सामने आ रही थी। उसने अपने दुपट्टे को अपनी मुट्ठी में दबोचा हुआ था और अपनी हिचकियां कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अगर उस वक़्त बलाल जाग जाता तो ज़रूर उसके साथ बहुत बुरा पेश आता। रात भर वो चैन की नींद नहीं सो सकती थी। न जाने कब उस पर नींद की देवी मेहरबान हुई तो वो नींद की वादियों में चली गई। सुबह बलाल की आंख खुली तो बेड की दूसरी तरफ देखा, वहां पर वो नहीं सो रही थी। उसकी निगाहें फौरन सोफे पर गई, जहां वो अच्छी तरह सो रही थी। उसके सोने का तरीका ऐसा था जिससे देखकर कोई भी मर्द बहक सकता था। ऐसे वो आड़ी तरछी लापरवाही से सो रही थी। बलाल आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके पास आया, उसके सीन चेहरे की तरफ देखने लगा, फिर उसके आड़े तरछे वजूद की तरफ देखने लगा। बेसाख्ता ही लबों से मुस्कुराहट बिखर गई। कितनी मासूम हो तुम, तुम्हारी उम्र की लड़कियों को इस कदर चालाक देखी है। मैंने हर चीज़ के बारे में इल्म होता है, अभी तक तुम्हें ये नहीं पता कि मियाँ बीवी का रिश्ता क्या होता है। तुम्हें तो अभी मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में ही नहीं पता। वो उसके गाल पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेर रहा था। नींद में एक अनजाना सा लम्स महसूस करके उसकी आंख खुल गई। वो घबराते हुए बिलाल की तरफ देखने लगी। वो अपने घुंटों को सीने के साथ लगाते हुए पीछे होने लगी। मेरे पास मत आइएगा, वो घबराते हुए बोली। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। क्या हो गया है मेरी जान, तुम तो इतना ज़्यादा डर रही हो, इतना ज़्यादा खौफ खा रही हो। अभी तो एक रात में तुम्हारे पास आया हूँ। ये कहकर वो यकदम उसके पास आ गया, अपने करीब चक कर चुका। ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ मुझसे दूर रहें। वह घबरा रही थी, उसके लब कप कपा रहे थे, आंखें फिर से भीगने लग गई थी। खबरदार, तुमने रोना शुरू किया। रोती हुई तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम्हें मालूम है मेरी पहले वाली बीवी थी ना, कबख्त रोती बहुत ज़्यादा थी और मुझे चिढ़-सी होती थी। फिर तुम्हें मालूम है जब रोती थी तो क्या कहता था? मैं किसी और की तरह इतने जुल्म तो नहीं ढाता। उसके नाजुक लबों पर मैं बहुत जुल्म करता था। अब की बार ईमान के लबों को अंगूठे के साथ सुलहाता हुआ बोला। उसका लफ्ज़ महसूस करके वो बहुत ज़्यादा कांप रही थी, उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। उसका जी चाह रहा था ज़मीन फटे फिर उसमें वह समा जाए। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं, मेरे पास मत आइए, वो रोते हुए बोल रही थी। अगले ही लम्हे उसे अपनी बाहों के हसार में उठाता हुआ बेड की तरफ ले जाने लगा। मेरी जान, शोहर का तो हक अदा करो। जब शोहर को तुम्हारी ज़रूरत होगी उसके पास आ जाया करो। ये कहकर उस पर झुका था। वह चीखने लगी थी। चीख चीख कर उसने पूरे ही कमरे को सर पर उठा लिया था।
अब की बार तो बिलाल भी परेशान हो गया था। उसे यूं चीखता हुआ देखकर फौरन उससे दूर हुआ। पागल हो गई हो क्या लड़की, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उसकी चीखें सुनकर फरजाना बेगम भी आ गई। दरवाजे पर दस्तक देती हुई बोली, बेटा सब ठीक तो है ना। दरवाजे पर मुसलसल दस्तक दिए जा रही थी। बिलाल शर्मिंदगी से खूनख्वार निगाहों से सामने बैठी हुई लड़की की तरफ देख रहा था। बिलाल का बस नहीं चल रहा था कि उसके साथ कुछ कर दे। अम्मा साई कुछ भी नहीं हुआ, बस आपकी भांजी का दिमाग खराब हो गया है, वही ठिकाने लगा रहा। वो गुस्से में बोला। उसके लबों पर हाथ रखता हुआ से पीछे टेक राउंड से लगा चुका था और वो उसका सांस बंद हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे अभी आंखें अब उबल कर बाहर आ जाएंगी। आंखों में से पानी बह रहा था, सांस बंद हो रहा था। उसके हाथ को अपने मुंह से हटाने की कोशिश कर रही थी। उससे जैसे हाथ हटाया, ईमान गहरी गहरी सांसें लेने लगी। जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, उसके बाद नीचे जाना है, रात को वलीमे का फंक्शन भी है, अभी सब नाश्ते पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वो गुस्से में बोला। उसने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों नीचे आई। ईमान के चेहरे पर 12 बजे हुए थे, बिल्कुल उदासी छाई हुई थी। उसके चेहरे से यूं महसूस हो रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा अज़ियत तकलीफ से गुजरी हो। कहीं से भी वो एक दिन की दुल्हन नहीं लग रही थी। उसकी आंखों से बहने वाले मोटे मोटे आंसू उस बात की गवाही दे रहे थे कि वो कितनी अज़ियत तकलीफ से गुजरी है। वो नाश्ता भी बहुत बेदिली के साथ कर रही थी। ईमान भाभी क्या हुआ है, अब ठीक तो है ना। हानिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। हानिया जो कि बिलाल के चचा की बेटी थी, घूर घूर कर बिलाल को देखते हुए ईमान से पूछ रही थी। लेकिन ईमान ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद ही कमरे में आ गई। रात वलीमे के फंक्शन में सब लोग चांद सूरज की जोड़ी कह रहे थे तो कुछ बहुत ज़्यादा बातें बना रहे थे। इतनी छोटी उम्र की लड़की के साथ शादी करने की क्या ज़रूरत थी। पहली वाली बीवी पर भी तो इतना जुल्म करता था, इस पर भी जुल्म करेगा। ये सारी बातें सुनकर बिलाल को गुस्सा आ रहा था। कुछ लोग तो ये कह रहे थे बहुत जल्द ये लड़की बिलाल को छोड़कर चली जाएगी क्योंकि ये मासूम सी बच्ची बहुत ज़्यादा हसीन है। कहाँ बिलाल इतना बड़ा, ये तो इसकी आधी उम्र की है। सारी बातें बिलाल के दिमाग को घुमा रही थी। बिलाल का बस नहीं चल रहा था कि बातें करने वालों की ज़ुबानें खींच ले। वलीमे के फंक्शन के बाद वह कमरे में आई तो उसके पीछे हानिया भी आ गई। ईमान मेरी बात सुनो। उसने निगाहें उठाकर हानिया की तरफ देखा। ईमान देखो, बिलाल भाई गुस्से के बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले हैं। तुम्हें मालूम है बिलाल भाई की पहले वाली बीवी मेरी आपी ही थी और मेरी आपी ने जितनी अजियतें तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं मैं नहीं जानती। तुम बर्दाश्त करो। तुम्हें बिलाल के साथ लड़ना होगा अपने हक के लिए, तभी तुम यहाँ सुकून से रहोगी, वरना वो शख्स तुम्हें अपने पाँव की जूती बना कर रखेगा। मेरे अपी के साथ भी वैसा ही करता था। ईमान उसकी तरफ देख रही थी जो मोहब्बत से उसे समझाने जा रही थी। ईमान उनकी कोई बात का जवाब नहीं दे रही थी क्योंकि उसकी खाला जान ने उसके साथ ऐसा किया था जो किसी की बातों पर भला किया ध्यान देती। हानिया जैसे ही कमरे से बाहर निकली, दरवाजे के सामने बिलाल खड़ा हुआ था, खूनख्वार निगाहों से हानिया को देख रहा था। दरवाजे के सामने बिलाल को खड़ा देखकर हानिया थोड़ी परेशान हुई, फिर फौरन वहां से आगे चली गई। बिलाल गुस्से में कमरे में दाखिल हुआ, उसके कंधों से पकड़कर पीछे दीवार के साथ लगाता हुआ बोला, और तुम्हें क्या पट्टियां पढ़ा कर गई है। मेरी बीवी होते हुए मेरे खिलाफ बातें सुनते हुए तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई। क्या तुमने उसे बोला है, बताओ मुझे, क्या मैं तुम पर जुल्म करता हूँ, अजीब तकलीफ देता हूँ। वो गुस्से में उसके जबर दबोचता हुआ पूछ रहा था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो परेशान हो चुकी थी। मेरे साथ झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, ना ही ड्रामे लगाने की। मैं तुम जैसी लड़कियों के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। वो बातें कर रही थी कि अजीब तकलीफ देता है, तुम भी ऐसे ही किया होगा। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो रोते हुए बोल रही थी। अब की बार बिलाल की दी हुई अजीब तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इस वजह से बिलाल कह रही थी कि उसने कुछ नहीं किया। इस दफ़ा फिर से पकड़कर बेड पर धक्का दे चुका था। बिलाल नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप ऐसा क्यों करते हैं। वो रोते सिसकते हुए बोली। अब की बार फिर से उसके कान में खालाजान की बातें गूंज रही थी। ये शौहर का हक होता है, ऐसे उसके हक से महरूम नहीं रखते। वो अपने तमाम तर हक वसूल करता हुआ कमरे से बाहर चला गया। ईमान तो यूं थी जैसे काटो तो बदन में लहू ना हो, बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। अपने घुंटों के गिर्द बाजू लिपटे बहुत बुरी तरह से रो रही थी। सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। रात भर रोती रही थी। रात भर बिलाल घर नहीं आया था। बिलाल यार क्या मसला है, यहाँ पर बैठे रहने का इरादा है क्या, आप तो वापस घर नहीं जाना। बिलाल सिरगट पर सिरगट पिए जा रहा था। वलीद की बात सुनकर एक लम्हे के लिए उसके हाथ रुके। उसने वलीद की तरफ देखा। हाँ बोलो, क्या बात करनी है। वलीद ने मुस्कुराते हुए पूछा। देख तो भाभी को छोड़कर आ गया है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लड़की अपने माँ बाप सब कुछ छोड़कर अपनी खातिर आती है, आप उसके साथ आगे से ऐसा सलूक करेंगे तो वो बहुत गलत होता है। वलीद उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। बिलाल कहने लगा, तुम्हें मालूम है वो महज 15-16 साल की बच्ची है। उसके पास जाते हुए मुझे अजीब सा महसूस होता है, लेकिन उसके बावजूद मैं उसे ऐसी ये तकलीफ दे चुका हूँ, अब उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है। दिल चाह रहा है। वलीद हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। तो पागल हो गया है, दिमाग ख़राब हो गया है। एक तो तूने इतनी अजीब तकलीफ दी, वो मासूम बच्ची है, और अब तुम जाना भी नहीं चाहता।
याद क्या कर रहा है? तुझे मालूम है मैंने सानिया को अपनी इन्हीं बातों की वजह से खोया है। उसे भी यूं ही अजियत तकलीफ देता था, जिन्होंने मोहब्बत करता था, मैंने उसे खो दिया। वलीद ने उसकी तरफ देखा। तुझे आज भी यही लगता है कि तानिया तेरी वजह से मरी है? वलीद ने उस बात में सर हिला दिया। तेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, तो ऐसी फजूल बातें सोचने जा रहा है। देख, परेशान होने की, किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जाओ, जाकर उससे माफ़ी मांगो, सॉरी करो, उसे मज़ीद तकलीफ मत दो। क्यों खुद को भी गुनहगार कर रहे हो और उस मासूम को भी अजियत और तकलीफ दे रहे हो? तू पागल हो गया है क्या? दिमाग ख़राब हो गया है? एक तो तूने उसे इतनी अजियत तकलीफ दी, वो मासूम बच्ची है, और अब तुम जाना भी नहीं चाहता। क्या सोच रहा है? तुझे मालूम है मैंने तानिया को भी अपनी इन्हीं बातों की वजह से खोया है। उसे भी यूं ही अजियत तकलीफ देता था, जिन्होंने मोहब्बत करता था, मैंने उसे खो दिया। वलीद ने उसकी तरफ देखा। तुझे आज भी यही लगता है कि तानिया तेरी वजह से मरी है? वलीद ने सर हिला दिया। तेरा दिमाग ख़राब हो चुका है कि तू ऐसी फजूल बातें करने जा रहा है। देख, परेशान होने की, किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जाओ, जाकर उससे माफ़ी मांगो, सॉरी करो, उसे मज़ीद तकलीफ़ मत दो, क्योंकि ख़ुद को भी गुनहगार कर रहे हो और उस मासूम को भी अजियत तकलीफ़ दे रहे हो। वो छोटी बच्ची है। यार, मैं क्या करूँ? मेरे घर वालों को सोचना चाहिए था। उन्होंने मेरा उसके साथ रिश्ता तय कर दिया। मैंने अम्मा को लाख मना किया, मुझे इस मासूम बच्ची के साथ शादी नहीं करनी, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे उसके पल्लू के साथ बांध दिया। तो मैं क्या कर सकता था? वलीद ने उसके कंधों से पकड़ा, उसे मोहब्बत से कहा, देखो बिलाल, मैं जानता हूँ तुम गुस्से के तेज़ हो, लेकिन इस मासूम को अजियत तकलीफ़ मत देना। चलो अब तुम जाओ। ये कहकर उसे भेज दिया। रात का कौन सा पहर था। बिलाल जब वापस घर आया तो वहीं बेड पर डरी सहमी सी सो रही थी। उसकी आंखों में बिल्कुल खौफ वाज़ह नज़र आ रहा था। बिलाल ने उसे पकड़कर अपनी बाहों के हसार में कैद किया। एक नरम सा लम्स महसूस करके उसकी बाहों के हसार में जाते ही फ़ौरन उसकी आंख खुल गई, लेकिन बिलाल ने उसे बोलने न दिया। बिलाल, आप प्लीज़ मुझे कुछ मत कहिएगा, प्लीज़, वो रोते हुए बोली। बिलाल कहने लगा, नहीं, कुछ भी नहीं कहूँगा। ये कहकर उसकी पुश्त को सहला रहा था। बिलाल, आप फिर वैसे ही करेंगे ना मेरे साथ, जैसे आपने पहले किया था? प्लीज़ अब मत कीजिएगा, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकूँगी, मेरी बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। वो उसे सिकते हुए बोली, अब मुझे किसकी सज़ा दे रहे हैं? जो गुनाह मैंने किया ही नहीं, मुझे उसकी सज़ा दे रहे हैं। वो बहुत बुरी तरह रो रही थी। उसके दिल में खौफ सा बैठा हुआ था कि बिलाल उसके साथ क्या कर देगा। अब फिर से वही अजियत और तकलीफ़ दे रहा था। वो खौफ में मुब्तला हो चुकी थी, लेकिन रात भर बिलाल ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। सुबह बिलाल की आंख खुली तो वह कमरे में मौजूद नहीं थी। बिलाल परेशान हो गया। उसे कमरे में ना पाकर सारे घर में उसे ढूंढने लगा। नीचे आया तो फरजाना बेगम किचन में खाना बना रही थी। मुलासमा भी वहाँ पर खड़ी थी। मुझे वो कहीं नज़र नहीं आ रही, लेकिन कहाँ चली गई है? वो आकर उनके पास बैठा तो फरजाना बेगम के चेहरे पर गुस्सा आया हुआ था। पता नहीं कहाँ चली गई। सुबह से मैंने मुलाज़िमा को कहा हुआ है कि उसे ढूंढो। मुलाज़िमा जब तुम्हें उठाने गई थी तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी, बल्कि तुम अकेले ही थे। ना जाने तुम्हारी बीवी कहाँ चली गई। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी के साथ भाग गई हो। अपनी माँ की बात सुनकर बिलाल कहने लगा, क्या मतलब भाग गई? अम्मा, वो मासूम थी, छोटी है, किसके साथ भागेगी? देखो बेटा, मुझे यही लग रहा है, वो जितनी मासूम नज़र आती है उतनी थी नहीं। बाकी सब आ चुके थे। धीरे धीरे वो सबसे पूछ रहा था। तानिया कहने लगी, क्या मतलब बिलाल भाई, कैसे वो आपको छोड़कर जा सकती है? वो तो मासूम थी, मैं नहीं मान सकती कि वो कहीं जा सकती है। तानिया ने चच्ची जान की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा हुआ बेटा वो तुम्हारी ज़िंदगी से चली गई, वैसे भी वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी। बिलाल अपनी माँ की तरफ देख रहा था, जो अपनी भांजी के बारे में ऐसा बोल रही थी। बिलाल उसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो चुका था। उसके घर में भी पता करवा चुका था, लेकिन कहीं नहीं मिल रही थी। अब तो बिलाल का दिमाग घूम चुका था। रात का कौन सा पहर था। वो कमरे में बैठा मुसलसल सिगरेट पिए जा रहा था। दिन में उसे एक अजीब सी बुरी आदत हो गई थी। उसके बगैर बिलाल को चैन सुकून नहीं मिल रहा था। उसे ढूंढ ढूंढ कर रात के वक़्त तानिया के कमरे में दाखिल हो गया। मुस्कुराते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारी बीवी कहाँ है। बिलाल ने गुस्से से यकदम उसकी तरफ देखा। क्या मतलब है? तुम जानती हो कहाँ है? मुझे बताओ। वह पागलों की तरह कहने लगा, क्या हो गया है? इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों लग गई है अपनी बीवी के बारे में जानने की? मैं नहीं चाहती कि जैसे मैंने अपनी आपी को खोया है, उस मासूम बच्ची को भी खो दे।
بلال نے غصے میں اس کی طرف دیکھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں نے تمہاری آپی کو نہیں مارا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ بلا وجہ کیوں تم مجھ پر شک کرتی ہو کہ میں اس کی جان لی تھی یا میں نے اسے مارا تھا؟ نہیں، میں بھلا کیوں بلا وجہ شک کروں گی یا بلا وجہ پوچھوں گی جب ظاہر ہے کہ مجھے معلوم ہے آپ نے نہیں مارا۔ بلال حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے؟ تم حقیقت جانتی ہو، تمہیں سب کچھ پتہ ہے، تو اب تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میری بیوی کہاں ہے؟ بتاؤ مجھے، میں پاگل ہوئے جا رہا ہوں۔ میں تمہاری آپی سے محبت کرتا تھا اور ایمان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ ایمان کو کھونا نہیں چاہتا۔ وہ پریشانی کے عالم میں بول رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی بیوی اسٹور روم میں بند ہے۔ آپ کی پہلی بیوی، آپ کی پہلے والی بیوی یعنی میری آپی بھی اتنے دن سے ہی غائب رہی تھی۔ وہ کہیں اور نہیں بلکہ اسٹور روم میں ہی بند تھی۔ وہ حیرت سے سامنے دیکھنے لگا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ بلکہ یہ حقیقت ہے۔ آپ کی بیویوں کی دشمن آپ کی ماں ہے۔ یہ سب کچھ آپ کی ماں کر رہی ہے۔ وہ حیرت سے سامنے دیکھنے لگا۔ کیا فضول بکواس کر رہی ہو؟ وہ غصے میں بولا۔ اس کے بعد وہ اسٹور روم کی طرف گیا۔ سامنے ایمان بکھرے ہوئے حلیے میں پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ پسینے سے اس کے چہرے پر بال چپکے ہوئے تھے۔ فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ وجود بالکل بے جان سا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی باہوں میں ہی اٹھا لیا، اسے لے کر کمرے میں آ گیا۔ اتنے میں فرزانہ بیگم بھی کمرے میں آ گئی۔ کہنے لگی، کہاں سے یہ لڑکی منہ کالا کروا کر آئی ہے؟ اس نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ بس ماں، اتنی زیادہ آپ کے اندر نفرت اس معصوم کے لیے پائی جاتی ہے، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس کے ساتھ ایسا کریں گی۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کیا مطلب ہے میں نے کیا؟ اماں مجھے صاف بتا دیں، آپ کو میری بیویوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے کیوں اس کے ساتھ یہ کیا؟ مجھے حقیقت بتائیں۔ وہ اپنی ماں سے پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہلے پہل تو نہیں مان رہی تھی، پھر غصے میں کہنے لگی، ہاں میں نے ہی کیا ہے، کیونکہ میں تمہاری سوتیلی ماں ہوں۔ جب تم پیدا ہوئے تھے تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ تمہاری وجہ سے مجھے تمہارے باپ کے ساتھ شادی کرنی پڑی۔ وہ ساری نفرت اور انتقام میں تم سے اور تمہاری بیویوں سے پورا کرتی ہوں۔ میری جوانی تمہاری وجہ سے برباد ہو گئی تھی۔ وہ غصے میں بول رہی تھی۔ بلال حیرت سے اپنی اماں سائیں کی طرف دیکھ رہا تھا، جن کے ساتھ وہ بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے اپنی محبت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی اور آج اپنی ماں کی یہ حرکت دیکھ کر وہ حیران تھا۔ مطلب کہ انہوں نے اپنی بھانجی کو بھی نہیں بخشا تھا، سب سے اس قدر وہ نفرت کرتی تھی۔ بلال کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ کو اتنی ہی پرابلم ہے تو میں اپنی بیوی کو یہاں سے لے کر کہیں دور چلا جاتا ہوں۔ اس کے بعد بلال نے اپنی ماں سے بات کرنا بھی بند کر دی۔ بلال اپنی ماں سے بات تک نہ کرتا تھا۔ وہ بے چین رہنے لگی تھی، لیکن بلال نے بھی کہہ دیا تھا، میں پہلے بھی اپنی بیوی کو آپ کی وجہ سے کھو چکا ہوں، اب نہیں کھونا چاہتا۔ ایمان کا خیال رکھنے لگ گیا تھا، اس سے محبت کرنے لگ گیا تھا۔ وقت کے ساتھ اس کی اماں سائیں بھی ٹھیک ہو گئی۔ بلال کو احساس ہی نہ ہوا کہ وہ ایمان سے اتنی محبت کرنے لگ گیا ہے۔ اس کی ہلکی سی ہلکی اذیت تکلیفیں نہیں دیکھ سکتا تھا، بس اس سے محبت کرتا تھا۔ ایمان کو حیرت ہوتی تھی، آہستہ آہستہ ایمان بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی۔